So hello everyone. In the last video, we have already gone through the one-dimensional array. We have seen what do you mean by one-dimensional array, what are the different operations performed on the one-dimensional array. After that, we have already seen about the searching and sorting techniques. Under the searching, we have already learned about the linear search and binary search. After that, we gone through the sorting techniques. We learn about the bubble sort method, selection sort method, and insertion sort method. Now today we will see a 2D array, call it as two-dimensional array. D stands for dimensional. In one-dimensional array, there is only a one dimension. That means if we start from the one particular location, then we have to go ahead by visiting each and every locations. अगर हमने एक बेस से स्टार्ट किया, एक बेस एड्रेस है मेरे पास एक array का, वहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, so I have to visit each and every location in a sequential manner. I have to go, and I have to go at the last position. That's why it is called as a one dimensional array. But many times what happens, suppose if you want to store the data in tabular format, you already aware about the matrix. In mathematics, you have already solved the different matrices or solved different types of matrix operations also. Different examples you already solved. If you're talking about the matrix, so matrix is the collection of data element or data stored in a rows and column. मैट्रिक्स में डेटा जो स्टोर होता है वो रोज और कॉलम में डेटा स्टोर करते हैं. सिमिलरली हम लोग टेबल की अगर बात करते हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट अ टेबल, अगर टेबल की मैं बात करता हूँ, सो इन टेबल वी आर गोइंग टू स्टोर द डेटा इन रोज एंड कॉलम्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेबल है तो टेबल में दो चीजें हम लोग को दिखती है, एक तो होता है रो एंड द सेकेंड थिंग इज कॉलम. So if you're talking about a two-dimensional array, the two-dimensional array, that is 2D array in C programming, is also known as a matrix. Two-dimensional array को हम लोग क्या बोलते हैं? Matrix बोलते हैं. A matrix can be represented as a table of rows and column. Every matrix contains the rows and column. Every table contains the rows and column. In 2D array, we can store the data in tabular format. टू डायमेंशनल अरे में हम लोग डेटा किस तरीके से स्टोर करते हैं? एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं. दैट मीन्स whenever you want to store the data in tabular format, so you have to use a 2D array, that means two dimensional array. Now we can see how to declare the 2D array. 2D array को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं? व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ 2D array? सो वेरी फर्स्ट इज डेटा टाइप नेम. सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? डेटा टाइप नेम लिखते हैं. दैट डेटा टाइप नेम कैन बी एनीथिंग, आइदर इट इज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, व्हाटएवर. जिस प्रकार का आपको डेटा, जिस पर्टिकुलर टाइप का डेटा आपको एक टेबल में स्टोर करना है, वो डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट नेम ऑफ द अरे, वी हैव टू प्लेस द नेम ऑफ द अरे ओवर हियर. After that, there is and two parameter. There is a row size and column size. In one dimensional array, we are having only one size. Suppose integer a of 10. That means integer is the data type, a is the name of the array, and 10 is the size of the array. So what your processor will do? Your processor will allocate the 10 consecutive memory location, okay, with the indices is a of 0, a of 1, a of 2 till the a of 9. You have started with 0, so goes till the 9. If you started with 1, तो कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा. But in two dimensional array, we have to specify two sizes because it's a two dimensional. There are two dimensions, rows and column. So in square bracket, you have to specify the size. In the first bracket, you have to specify the size of row, and in second brackets, you have to specify the size of column. That means how many number of rows you want and how many number of columns you want.
Okay, so this is actually the syntax of declaration of 2D array, that is data type array name row size and column size converted with a semicolon. We see one example. Suppose integer x of 3 by 3, integer x in a bracket 3, one more bracket is there 3. That means how you will know this is a two-dimensional array, because there is in two dimensions 3 3. पहले ब्रैकेट्स में 3 लिखा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट्स में भी 3 दिया हुआ है. That means row size is 3 and column size is also 3. That means integer is a data type. X is the name of the array, where the first number in the bracket represent the row size. So how many rows are there? There are total 3 rows. After that, in the second bracket, the 3 represent a column size. It means that how many number of columns are there? There are total 3 columns. So likewise, how many rows and column in the table? So there are 3 rows and 3 columns. Now we will see simple example. Actually we'll see ये जो नीचे जो एक आपका डायग्राम दिया हुआ है, नीचे जो टेबल दिया हुआ है, it is a 3/4 मैट्रिक्स. That means instead of 3 we can here यहाँ पे आप 4 कर देंगे. ये आपका 4 है. अगर 3/3 का अगर मैट्रिक्स है आपका तो 3 रोज 3 कॉलम रहेंगे. बट नीचे जो टेबल दिया हुआ है ये कितने बाय कितने का है? देयर आर 3 नंबर ऑफ रोज, रो 1, रो 2 एंड रो 3, and column 1, column 2, column 3, column 4. Okay, that means 4 columns and 3 rows. So we can write down x of 3 and 4. So first 3 represent number of rows and 4 represent the number of columns. So here x is a two-dimensional array. The array can hold 12 elements. So how many elements that particular x array will hold? x नाम का जो टू डायमेंशनल अरे हमने बनाया है, सो x कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज को, कितनी नंबर ऑफ डेटास को होल्ड करेगा? सो इट विल होल्ड्स द 12 एलिमेंट्स, बिकॉज 3 into 4 12. दैट मीन्स 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है. दैट मीन्स हाउ मेनी लोकेशंस रिजर्व? इट विल रिजर्व द 12 लोकेशन एंड एवरी लोकेशन will hold the one particular value. That means how many total number of elements will hold by x array? It will hold the 12 values. How many locations are there? It will allocate the 12 memory locations. Okay, so you can think the array as a table with 3 rows and each row has a 4 columns. That means हर एक row में कितने columns रहने वाले? 4 रहने वाले. If you see the matrix, so there is a simple representation. So we are showing this matrix in a tabular format, but actually your memory locations will be in a contiguous format. That means first 4 location, then 4 location, then 4 location. Likewise हम लोग दिखाते समय इसको एक टेबुलर में दिखाते हैं, ठीक है. बट मेमोरी जो अलोकेट होता है वो 12 मेमोरी जो होगी वो कॉन्जिक्यूटिव होगी. दैट मीन्स एक के नीचे एक आपका मेमोरी लोकेट होगा. आपका मेमोरी ऐसे टेबल जैसे दिखेगा नहीं, ठीक है. वो मेमोरी में कैसे रहेगा? वो 1 by 1 लोकेशंस, एक के नीचे एक लोकेशन को रिजर्व करेगा. लाइकवाइज इस तरीके से आपके 12 लोकेशंस रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है. इफ यू स्टार्ट विद 0, सपोज ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये कहाँ तक चलेगा? 11 तक चलेगा. कहाँ तक चलेगा? 11 तक चलेगा. एंड इंडाइसेस x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, लाइकवाइज. ओके, नाउ सो मेमोरी जो रिजर्व होगी एक कॉन्टिग्यूअस फैशन, एक सिक्वेंशियल मैनर में हम लोग मेमोरी को रिजर्व करते हैं. बट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को समझना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे अभी ये 3/4 का मैट्रिक्स है. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज? रोज आर 3 एंड कॉलम्स आर 4. दैट मींस रो 1, रो 2, रो 3 एंड कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4. सो जो फर्स्ट लोकेशन होगा आपका, जो फर्स्ट लोकेशन होगा वो क्या रहेगा? x of 0 of 0. दैट मींस पहला लोकेशन क्या रहेगा? 0 of 0. दैट मींस रो 0, कॉलम 0. सपोज ये आपका कॉलम 0 है, ये आपका कॉलम 1 है, ठीक है. वी विल स्टार्ट विद 0 1 2 3 4. अगर आपने 1 2 3 4 से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे क्या आएगा? x11, x12, x13, x14. अगर रो 2 की मैं बात करता हूँ, सो रो 2 है आपका, सो x of 21, x of 22, ठीक है, x of 23, x of 24, इस तरीके से आएगा. बट इफ यू स्टार्ट विद 0, कॉलम नंबर 1 को मैंने 0 असाइन किया, देन कॉलम नंबर 2 को मैंने 1 किया, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, ठीक है. सो 4 कॉलम्स, एक 0 से स्टार्ट किया तो 3 तक चलेगा, 1 से स्टार्ट किया तो 4 तक चलेगा. वैसे ही रो 0, रो 1 एंड रो 2. 0 से स्टार्ट किया तो 2 तक चलेगा. इफ यू स्टार्ट विद 1
तो कहां तक चलेगा, 3 तक चलेगा। दैट मीन्स व्हाट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन? So how we can read? X of 0 0, that means row 0 column 0. After that is second location, then row 0 column 1. रो सेम है आपका, वेरी क्या हो रहा है, कॉलम हो रहा है। दैट मींस रो 1 के लिए कॉलम कितने बार वेरी होगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड कॉलम 4। दैट मींस जब आपका रो 1 रहेगा तो पहले लोकेशन का एड्रेस आप कैसे रीड करोगे, पहले लोकेशन को x ऑफ 0 0, उसके बाद सेकंड लोकेशन को x ऑफ 0 1, उसके बाद थर्ड लोकेशन को x ऑफ 0 2 एंड फोर्थ लोकेशन को x ऑफ 0 3। नाउ रो 2, अगर सेकंड रो को मुझे देखना है तो रो 2 के लिए रो विल बी कांस्टेंट, वेरी क्या हो रहा है आपका, कॉलम। सो रो क्या आपका 1 है, सो 1 x ऑफ 1 0, x ऑफ 1 1, x ऑफ 1 2, x ऑफ 1 3। नाउ रो इज 2, सो रो आपका कांस्टेंट है, वेरी क्या होगा, कॉलम होगा। दैट मींस x ऑफ 2 0, x ऑफ 2 1, x ऑफ 2 2, x ऑफ 2 3। लाइकवाइज हम लोग जो अरे है, जो मैट्रिक्स फॉर्म में आपने बनाया हुआ है, उससे डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसमें डेटा हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक जो भी आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ा हुआ, जैसे आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ठीक है, आफ्टर दैट नाउ हाउ टू इनिशियलाइज द अरे, अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? सो बेसिकली व्हाट मीन्स द इनिशियलाइजेशन? इनिशियलाइजेशन मीन्स जैसे ही आप अरे को डिक्लेयर करते, जैसे आपने 2 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर किया, बाय डिफॉल्ट हम लोग उसमें कुछ वैल्यू डाल के रखते हैं, मीन्स इनिशियलाइजेशन। यानी आपने अरे डिक्लेयर किया, साइड बाय साइड उसको इनिशियलाइज भी करके रखा, यानी उसमें उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में आपने कुछ वैल्यूज डाल के रखी है। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट वेज टू इनिशियलाइज द 2 डायमेंशनल अरे। So what are the different ways? Suppose I have declared one array integer c of 2 by 3, integer c in a one bracket 2 and another bracket में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। So c of 2 is a row size, यहाँ और 3 आपका क्या है, कॉलम साइज है। 2 आपके रोज है और कॉलम आपका कितना है, 3 है। दैट मीन्स 2 by 3 का मैट्रिक्स बनने वाला है। दैट मीन्स हाउ मेनी डेटा एलिमेंट्स विल कंटेन बाय c? 2 into 3 6। दैट मीन्स कितने लोकेशन रिजर्व हो गए, 6 लोकेशन रिजर्व हो गए। How many values it will contain? It will contain the 6 values. कितने values contain करेगा, 6 values contain करेगा। Now, how to initialize the array? How to initialize a 2-dimensional array? So equal to is the assignment operator. You have to write down integer c of 2 by 3 equal to curly brace, curly brace दे दिया। After that 2 by 3 का मैट्रिक्स है, that means we require total 6 values। दैट मींस पहले रो में आपकी 3 वैल्यू रहेगी, देन सेकंड रो में भी आपकी क्या है, 3 कितनी वैल्यू रहेगी, 3। दैट मींस रो आपके कितने हैं, दैट इज सपोज ये आपका रो 1 है, ये आपका r1 है और ये आपका r2 है। ठीक है, दैट मींस हमने 0 से स्टार्ट किया तो ये रो 0 रहेगा और ये रो 1 रहेगा। सपोज मैंने कॉलम को 0 से स्टार्ट किया तो ये कॉलम 0 रहेगा, ये आपका कॉलम 1 रहेगा, ये आपका कॉलम 2 रहेगा, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया। 1 से स्टार्ट करता तो इट स्टार्ट विथ 1 एंड गोस टिल द 3। नाउ इंटीजर c of 2 2 and 3 equal to how it is declared, how it is initialized। सो आपने एक मैट्रिक्स बनाया, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, इक्वल टू, आफ्टर दैट देयर इज अ कर्ली ब्रेस। ये कौन सा ब्रेस है, कर्ली ब्रेस है। आफ्टर दैट चाहे तो आप 6 वैल्यू एज इट इज डाल सकते हो। देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में इंटीजर c of 2 by 3, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। आपने क्या किया, इक्वल टू कर्ली ब्रेस दे दिया। हाउ मेनी टोटल वैल्यूज आर रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर्ड 6 वैल्यूज, वी रिक्वायर्ड 6 वैल्यूज। दैट मींस आपने कर्ली ब्रेसेस में टोटल 6 वैल्यूज डाल दी। कितनी वैल्यूज डाल दी, देखो 1 3 0 -1 5 एंड 9। सो पहली वैल्यू 0 0 में जाएगी, दूसरी वैल्यू 0 1 में जाएगी, तीसरी वैल्यू 0 2 में जाएगी। सो पहला क्या था, 1 था तो 0 0 में 1 चले गया, दूसरा 3 था तो 0 1 में 3 चले गया, तीसरा 0 था तो 0 किस में चले गया, 0 2 में। देन फर्स्ट रो इज कंप्लीटेड, नाउ सेकंड रो। देन सेकंड रो में, सेकंड रो का एड्रेस क्या है, 1 0 है, 1 0 में फिर क्या जाएगा, -1 जाएगा, फिर 1 1 में क्या जाएगा, 5 जाएगा, फिर 1 2 में क्या जाएगा, 9 जाएगा। सो लाइकवाइज आपकी सारी वैल्यूज स्टोर होती है। सो इट इज वन ऑफ द वे। सो आप जो भी आपने अरे डिक्लेयर किया है 2 डायमेंशनल अरे, जस्ट उसके सामने कर्ली ब्रेस देके जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होल्ड करने वाला है उतनी नंबर ऑफ आप वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे। इट इज वन ऑफ द मेथड। इन अनदर वे, ठीक है, सपोज नाउ इन दिस एग्जांपल व्हाट वी डिड, इंटीजर c, एक ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज पास नहीं किया है, एक ब्रैकेट में कुछ भी वैल्यू पास नहीं किया, लेकिन सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यूज पास किया है। ठीक है, दैट इज 3। ठीक है, सो नाउ हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले रो की वैल्यूज आपके पास है कि कुछ भी नहीं है, कॉलम की वैल्यूज आपके पास है। ठीक है, दैट मीन्स कॉलम की वैल्यूज आपके पास है,
आपके पास कॉलम कितने, 3, 1 2 3, हाउ मेनी वैल्यूज यू हैव पास, आपने करली ब्रेस के अंदर ये पहले 3 वैल्यूज पास की, दैट मीन्स फर्स्ट रो में आपकी 3 वैल्यूज रहने वाली है बिकॉज कॉलम्स आर 3, ठीक है। देन इन द सेकंड रो के लिए आपने वैल्यूज भेजी और से 3, दैट मीन्स हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रोज, रोज आर 2। जैसे आपने यहाँ पे वैल्यूज भेजी है उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ रो जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 2 सेट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यू हैव पास टोटल 6 वैल्यूज। करली ब्रेसेस में आपने करली ब्रेस बनाया जिसमें पहले 3 रोज की वैल्यूज भेज दी, पहले पहले रोज में 3 कॉलम्स की वैल्यू आपने भेज दी, आफ्टर दैट सेकंड में -1 5 एंड 9, दैट इज सेकंड रोज के लिए 3 कॉलम की वैल्यूज आपने पास की, ठीक है। सो इसमें से भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो। एंड अनदर मेथड इज इंटीजर सी, इन वन ब्रैकेट इज देयर इज 2 एंड अनदर इज 3। सो 2/3 का टेबल बना हुआ है जिसमें आपकी दोनों वैल्यूज है, रो की वैल्यू 3 है और कॉलम की वैल्यू आपकी, सॉरी रो की वैल्यू 2 है, कॉलम की वैल्यू 3 है। सो यहाँ पे वैल्यूज पास की 130, तो ये कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट रो में जाएगा, -1 5 9 ये कहाँ पे जाएगा, ये सेकेंड रो पे जाएगा। सो लाइकवाइज वी कैन initialize the array. Now suppose in this example integer c of 2/3, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, रोज आर 2 एंड कॉलम्स आर 3, इक्वल टू, मैंने करली ब्रेस देके सेमी कॉलन देके छोड़ दिया है। व्हाट आई डिड, मैंने अरे को डिक्लेयर किया, इक्वल टू करली ब्रेस दे दिया, सेमीकोलन देके छोड़ दिया, ये करली ब्रेस में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वी haven't write anything in the curly braces. So it means that it will allocate the memory locations as per the given size of row and column, that is 2 into 3 6, so 6 जो मेमोरी लोकेशन आपके रिजर्व हो गए उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर रहेगा, उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि आपने इक्वल टू साइन दिया है, उसके बाद कर्ली ब्रेस देके सेमीकोलन से आपने टर्मिनेट कर दिया है। दैट मींस जो भी आपके 6 लोकेशन रिजर्व हो जाएंगे वो सारे 6 लोकेशन पे आपका कौन सा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, 6, क्योंकि आपने यहाँ पे करली ब्रेस में कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं किया है, ठीक है। सो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू initialize the array. Now the third part is how we are going to access the element of two-dimensional array. So we can access any element of array at any random point of time. कहीं से भी कभी भी हम लोग अरे का एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंटीजर वैल्यू, एक वैल्यू नाम का वेरिएबल है, एक वैल्यू नाम का वेरिएबल है, इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, a ऑफ 2/3, दैट मीन्स a जो अरे है उसके सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में जो भी वैल्यूज होगा वो किसको किसमें स्टोर हो जाएगा, वो वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। that means integer val is equal to a of 2/3, ठीक है। that means 2 में that means अरे a के अरे a जो है आपका अरे a का टेबल जो बना है उसका सेकेंड रो, उसके सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में जो वैल्यू होगी, सेकेंड रो थर्ड कॉलम पोजीशन पे जो वैल्यू होगी which is assigned to value, that means we are going to access the value of two-dimensional array with the सबस्क्रिप्ट एंड नेम ऑफ द अरे। दैट मीन्स हम लोग अरे का इंडाइसेस यूज करके हम लोग पर्टिकुलर टू डायमेंशनल अरे की वैल्यूज हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू एक्सेस, वी आर गोइंग टू assign that value to some other variables. Now we can see three dimensional array. So ये हुआ two dimensional array. We will see the programs of two dimensional array after few minutes. Okay, so now we'll see 3D array. Like 2D array, in 2D array we are having two dimensions, we are having row size and we are having column size. Now in three-dimensional array, so there are three dimensions. So which are the three dimension, how we are going to 3D array? So basically, sorry, so whenever you want to store the larger amount of data, जितना आपके dimensions ज़्यादा रहेंगे उतना आप ज़्यादा डेटा आपके अरे में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। It means that if we are talking about the three-dimensional array, that means we are having three dimensional, how we are going to do three-dimensional array? So as usual we have to specify the data type over here. After that array name can be anything. After that the first size, specify the block size. Will tell you what do you mean by block size.
पहले होता है आपका ब्लॉक साइज, जो पहले ब्रैकेट में जो भी नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ब्लॉक साइज को, एंड द सेकेंड साइज will indicate the size of row, how many rows we want. After that, the third size represent the column size. Now in this example, what we have written, integer x, in a bracket there is 2, there is 3, and another bracket में क्या पास हुआ है, 3 पास हुआ है. So integer is the data type, x is the name of the array, then there are 3 sizes. It means that it indicates this is a 3-dimensional array. ये क्या है, 3-dimensional array. In a very first brackets, 2 represent the block size. So basically what it means, the block size, जो आपका ये x नाम का अरे बना है, जो आपका ये x नाम का अरे है, ठीक है, इट विल कंटेन, ब्लॉक साइज का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ 2-डायमेंशनल अरे विल होल्ड बाय दिस पर्टिकुलर अरे x. ब्लॉक साइज रिप्रेजेंट, ब्लॉक साइज क्या रिप्रेजेंट करता है, द अरे x कंटेन द 2 अरे ऑफ 2D अरे विद द साइज ऑफ 3x3. दैट मीन्स ये आपका जो पहला साइज होता है ये ब्लॉक साइज होता है, सेकेंड साइज जो होता है ये आपका रो का साइज होता है, और थर्ड वन होता है आपका कॉलम का साइज होता है. दैट मीन्स आपके पास रो और कॉलम का साइज कितना है, 3 और 3 है, रो साइज इज 3 एंड कॉलम साइज इज 3. इट मीन्स दैट इसका ब्लॉक साइज कितना है, 2 है. 2 है, इसका मतलब ये x नाम का जो अरे बना है, x नाम का जो अरे है उसमें 2 अरे है जो 3x3 डायमेंशन के अरे है. दैट मीन्स जो 2-डायमेंशनल के अरे है, एंड इट विल होल्ड द 2 डिफरेंट अरे. दैट मीन्स x नाम का अरे है, ठीक है. सो ये x नाम का जो अरे है, ये x नाम का जो अरे है, ये x नाम का जो अरे है, इसमें 2 अरे हम लोगों के होल्ड हो गए, ठीक है. दैट मीन्स ये x नाम का अरे बना हुआ है, दैट मीन्स इसका ब्लॉक साइज कितना है, 2 है, ठीक है. सो ब्लॉक साइज 2 है, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 अरे हैं, कितने डायमेंशन के, 2-डायमेंशनल के अरे, 2 डायमेंशंस के 2 अरेज है, और साइज कितना रहेगा, 3x3 का साइज रहेगा, ठीक है. दैट मीन्स इस तरीके से, राइट. सपोज x इज द अरे, ठीक है, इसका ब्लॉक साइज कितना है, 2 है. दैट मीन्स ये x में दो ब्लॉक यानी 2 अरेज है, ठीक है, 2 डायमेंशनल्स के अरे है, ठीक है, जिसका साइज है 3x3 का. सपोज अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 2 की जगह अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, इट मीन्स दैट व्हाट इज द ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज इज नाउ 3 ब्लॉक साइज है. दैट मीन्स x में 2 डायमेंशनल्स के अरे हैं जिसका साइज कितना है, 3x3 का है, ठीक है. नाउ सपोज अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह 5 करता हूं, दैट मीन्स व्हाट इज द ब्लॉक साइज, इज ब्लॉक साइज 5. यानी कितने आपके पास अरे हैं, 2 डायमेंशनल के 5 है. दैट मीन्स 3x3 के आपके पास 5 अरे बनेंगे. दैट मीन्स ब्लॉक साइज रिप्रेजेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स with the particular size for the 2-dimensional array. That means we can say it is a 3D array. Likewise, we are going to declare the 3-dimensional array, same as we have to initialize the array also. ठीक है, 3-dimensional array को भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे, जस्ट इसके सामने जो आपने अरे डिक्लेयर किया है इसके सामने आप इक्वल टू सिंबल दे दो. इक्वल टू सिंबल लेके जो करली ब्रेस आप बनाओगे, यहाँ पे करली ब्रेस बनाना है और उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज आपको डालना है, ठीक है, यहाँ पे. दैट मीन्स आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी आएगी, अगर ये अरे है इंटीजर x 2 3 3, दैट मीन्स 2 into 3 6, 6 into 3 18. दैट मीन्स हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज वी रिक्वायर्ड 18 वैल्यूज. हमें कितनी वैल्यूज लगेगी, 18 वैल्यूज लगेगी. ओके, लाइकवाइज वी आर गोइंग टू 3D, we are going to initialize the 3D array. Now we will see the programs of 2D array. How we are going to write the programs for 2-dimensional array, this series program. Okay, now this is a simple program. How we are going to declare and initialize a 2-dimensional array. So include stdio.h, include conio.h, void main, these are the common statement. After that, integer a 3x3, that means we have declared one array named as a. Array name can be anything with a data type is integer. That means आप एक array, एक टेबल बनाने वाले हो, जिस टेबल का नाम है a, जिसमें आने वाला डेटा इंटीजर टाइप का है. So what we have written, integer a of 3x3 equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. After that मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया. So it means that ये एक स्टेटमेंट के थ्रू, ये स्टेटमेंट के थ्रू क्या होगा, एक आपका 3x3 का एक टेबल आपका रिजर्व होगा, एक 3x3, दैट मीन्स आपके 9 लोकेशन रिजर्व हो गए, ठीक है.
जिसमें आपको आपने 9 वैल्यूज दी है, 1 to 9 आपने वैल्यू स्टोर करी है। दैट मीन्स ए ऑफ 3/3, दैट मीन्स जो भी आपका मैट्रिक्स फॉर्म होगा, जो भी आपके 9 लोकेशन बनेंगे, ठीक है, सो जितने भी आपके 9 लोकेशन बनेंगे, सो इन फर्स्ट लोकेशन ए ऑफ 0 0 में 1 होगा, ए ऑफ 0 1 में 2 स्टोर होगा, ए ऑफ 0 3 में 0 1 0 2 0 3 में 3 स्टोर होगा। आफ्टर दैट वैसे 4 5 6 7 8 9 एक एलिमेंट आपका स्टोर होते चलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट आई हैव टेकन 2 वेरिएबल इंटीजर एंड जे, बिकॉज व्हेनेवर you are working on a two-dimensional array, we require a two for loop, because when row is 0 तो आपका कॉलम कितने बार वैरी होने वाला है, ठीक है, इसलिए हमें दो फॉर लूप लगने वाले हैं। तो दो फॉर लूप में यूज करने वाला, तो इसलिए मैंने आई और जे वेरिएबल लिया हुआ है। CLR SCR फॉर टेकिंग द आउटपुट इन द क्लियर स्क्रीन। आफ्टर दैट प्रिंट ऑफ अरे एलिमेंट्स आर, ठीक है। आई हैव प्रिंट द मैसेज अरे एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये अरे जो बनाया हुआ है टू डायमेंशन में, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मैंने वैल्यूज डाल के रखा हुआ है, ठीक है। सो मैं यूजर से वैल्यू नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने अरे को इनिशियलाइज करके रखा हुआ है विद सम सॉर्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। सो अभी मुझे ये अरे में क्या कौन से वैल्यूज है, ये जो आपका 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है, ये जो 3x3 का आपका टेबल फॉर्म हुआ है, इसमें क्या वैल्यूज है, वो वैल्यूज अगर मुझे डिस्प्ले करना है, सो मैं कैसे करूंगा, प्रिंट अप अरे एलिमेंट्स आर, मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया। आफ्टर दैट आई हैव टेकन वन फॉर लूप फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। एक फॉर लूप चला है, मैंने 0 से स्टार्ट किया है तो लेस देन 3 तक चलेगा, अगर 1 से स्टार्ट किया तो 3 तक चला रहता है, ठीक है। अभी 0 से स्टार्ट किया तो कहां तक चलेगा, 0 1 एंड 2, दैट मींस हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रोज, 3 रोज। 0 से स्टार्ट किया तो 2 तक चलेगा, 0 1 2, 3 तक जाएगा क्या, नहीं, इसलिए लेस देन 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने 1 से स्टार्ट किया तो यू हैव टू पुट i इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, उसके अंदर एक दूसरा फॉर लूप लगा है। दैट मींस ऊपर वाला लूप ये किस लिए चला है, ये रो के लिए चला है। दैट मींस व्हेन रो इज 0, आपका रो 0 होगा तो आपका कॉलम कितने बार वैरी होता है, कॉलम आपका 3 बार वैल्यू होगा, बिकॉज कॉलम की वैल्यू भी आपकी क्या है, 3 है, बिकॉज आर आपका रो कितना है, 3 है, और दूसरे में भी क्या लिखा है, कॉलम, कॉलम भी आपका कितना है, 3 है। 3/3 का है, दैट मींस रो इज आल्सो 3 एंड कॉलम्स आर आल्सो 3, ठीक है। दैट मींस फर्स्ट फॉर लूप जो लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज, एंड इसके अंदर जो फॉर लूप लिखा हुआ है विच इज यूज्ड फॉर द कॉलम। दैट मींस आप यहाँ पे आर और सी नाम भी यूज कर सकते हो अगर कंफ्यूज हो रहा होगा। तो I represent for row and J will represent for the column. That means when I is equal to 0, जब आपका I 0 होगा तो आपका नीचे वाला for loop कितनी बार वैरी होगा, J is equal to 0, J is equal to 1 and J is equal to 2, यानी J कितने बार वैरी होगा, 3 बार, यानी आपका रो 0 कंप्लीट हुआ। जैसे ही आपका J फॉल्स होता है, ठीक है, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर फिर से क्या करेगा, I को 1 से इंक्रीमेंट करेगा। नाउ i is 1, ठीक है, i1 है, दैट मींस रो नंबर 1 है आपका, रो 1 है तो अगेन आपका कॉलम कितने बार वैरी होगा, कॉलम इज वैरी 3 टाइम्स, j is 0, j is 1 एंड j is 2, ठीक है। सो इसलिए हम लोगों ने दो फॉर लूप यूज किए हैं। आफ्टर दैट उसके अंदर जब i इज इक्वल टू 0 होगा, j इज इक्वल टू 0 होगा, सो आपका कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, a ऑफ i j, i 0 है, j 0 है, दैट मींस 0 0 पोजीशन की वैल्यू प्रिंट होगी। तो 0 0 पोजीशन की वैल्यू क्या है, 1 है, आपने क्या डाल के रखा है, 1, सो पहले आपका 1 आएगा, ठीक है। नाउ i 0, j अभी 0 था, अभी j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब तक ये अंदर वाला लूप फॉल्स नहीं होता तब तक ये आउटर लूप पे नहीं जाता है, ठीक है। पहले i जब 0 था, j 0 था, तो आपकी 0 0 पोजीशन की वैल्यू डिस्प्ले हो गई, ठीक है। नाउ i 0 ही है, j अभी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, i 0 है, j 1 हो जाएगा, दैट मींस अभी कौन से पोजीशन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 0 1 पोजीशन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नाउ i सेम है, j अभी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, दैट मींस 0 2 पोजीशन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। दैट मींस आपकी पहले रो की वैल्यू 0 0 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, फिर 0 1 पे क्या है, फिर 0 2 पे क्या है, ये तीन वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। दैट मींस आपके आंसर में क्या आएगा, 1 2 एंड 3, ऐसे तीन वैल्यू आपकी वैल्यू, आपको तीन वैल्यूज आपके मॉनिटर स्क्रीन पे मिलेगी। आफ्टर दैट जैसे j फॉल्स होता है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये i को इंक्रीमेंट करेगा, दैट मींस i इज 1, दैट मींस आप रो नंबर 1 पे हो, रो नंबर 1 पे हो, दैट मींस अगेन फिर आपका नीचे वाला लूप कितने बार वैरी होगा, 3 बार वैरी होगा, j1 j0 j1 j2, दैट मींस अभी आपका वैल्यू किसका डिस्प्ले होगा, अभी आपका i कितना हुआ है 1, j कितना है 0, तो ये 1 0 पोजीशन का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो 1 0 पोजीशन पे 4 है तो 4 डिस्प्ले करेगा, फिर 1 1 पोजीशन का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, फिर आपका 1 2 पोजीशन का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। लाइकवाइज आपकी अरे की सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, सो अल्टर F9 करता हूँ, सो जीरो एरर, आफ्टर दैट कंट्रोल F9 कर दिया,
ठीक है। नाउ सी द अरे एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। सो 3x3 का मैट्रिक्स था, बाय डिफॉल्ट आपने इसमें वैल्यूज डाल के रखे थे, तो हमारा इस तरीके से मैट्रिक्स डिस्प्ले हो गया। तो पहले रो में दैट मींस रो 0 में क्या है, तो 0 0 पोजीशन पे 1 है, 0 2 0 1 पोजीशन पे 2 है, 0 3 पोजीशन 0 2 पोजीशन पे 3 है। आफ्टर दैट सेकंड रो दैट मींस 1 0 पे क्या है 4 है, 1 1 पे क्या है 5 है, 1 2 पे क्या है 6 है। आफ्टर दैट 2 0 पे क्या है 7 है, 2 1 पे क्या है 8 है, और 2 2 पे क्या है 9 है। लाइकवाइज हमारा ये अरे के एलिमेंट्स डिस्प्ले हुआ है। ठीक है। सो होप कि सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वन एंड ऑल। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल सी लेटर ऑन।